Acha bache, starting with the name of Allah Almighty. So it is your second lecture after the COVID situation. We discussed some theories in the previous lecture, and in this particular lecture we are going to discuss certain more theoretical topics. So some of the students are unsure about the percentage of theoretical part and the numerical part. So you should not be worried about the percentage of theoretical and numerical part. You should consider the topics, as after your mids we conducted the first lecture, it is your second lecture. So whatever the thing we are doing, you should be ready uh, to grab that. I'll try my level best that theoretical topics should be more as compared to the numerical topic, so that it will be easier for you to attempt the paper. Because if I'll add certain numerical topics, numerical discussions, numerical solution will be another headache for you. So I will try to create certain 50-50 margin, something like that. Fine. So today another theoretical topic that we are going to discuss is basically the risk management. Somehow it is related to the financial risk. Certain things we must have to consider as long as the risk management is concerned. Fine. In simplest form, we may say that the risk is basically the difference between the required and desired situation. An easiest definition: required and actual situation. The difference between these things is basically the problem. Whatever you are requiring and you have a chance that actual situation will be different, that is creating the risk factor. You require something but the actual thing will not be like that, so it means if there is a chance that your required thing will be different, your actual thing will be different from your required thing, so it means the factor of risk is present. Fine. We have to adopt certain risk management process. And that risk management process will allow the financial managers, the treasurers of the company to perform certain steps that will help them to cope with the required situation. Fine. So whatever the thing that will actually happen, you will start the activity and there will be certain result. That result will be somehow should be same to your required result. It means you want that actual activity should be according to your required activity. Fine. There should not be any sort of differences. अगर differences आएंगे, it means problem आएगी. You want to mitigate that thing, you want to remove that thing. आपने उसी चीज़ को ख़त्म करना है. आपको चांसेस लग रहे हैं कि सर वो चीज़ वो डिफरेंट आ जाएगी, इट मीन्स आपके दिमाग में रिस्क है कि सर मैं रिक्वायर कर रहा हूँ 10% रिटर्न बट द मार्केट रिटर्न कुड बी 8%. अब 10% रिक्वायर्ड रिटर्न है, 8% मार्केट का रिटर्न है. it means there is a chance that 2% will not be the 2% will be the difference that can arise. So that 2% should not arise. Risk management is basically an activity in which you want to deal with that 2%, because actual activity can be 8%, required activity will be 10%, so difference will be 2%. that is your risk management activity. आप चाह रहे हो कि सर ये ना हो. Fine. So very first thing in your risk management process is to identify risk exposures. Exposure as a word state as a the simplest meaning of exposure means how the risk will come to you, how the risk will actually happen. मतलब अगर आता है रिस्क तो किस सूरत में आएगा, कैसे, हमने क्या क्या हो सकता है, हमने वो तमाम सिचुएशंस को आइडेंटिफाई करना है. फाइन.
जब हम आइडेंटिफाई की बात पे आते हैं, फिर हमने पहली आइडेंटिफिकेशन के लिए यू जस्ट हैव टू मेजर इट एंड एस्टिमेट रिस्क एक्सपोजर। मीन्स इफ़ देयर विल बी द रिस्क, वो कितने हद तक आपको डिज़ास्टर क्रिएट कर सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। यू जस्ट हैव टू मेजर, यानी मैंने आपको बताया ना 10% एंड 8%, 2%। अब क्या चांसेस हैं दैट इट विल बी 2%, इट विल नॉट बी 4% और इट विल नॉट बी 1%। सो यू हैव टू मेजर, और ये एस्टिमेशन ही है आपकी। यू आर नॉट actually present in the future, you are not watching the future, you just have created certain imagination in your mind कि सर ये हो सकता है, तो measure करना है and you estimate the risk exposure, fine। along with that exposures के ऊपर आप एक और चीज़ measure करते हैं कि find instruments and facilities to shift और trade risk। वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं? अब इंस्ट्रूमेंट्स में हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कह सकते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, डेट एंड इक्विटी, फाइन। हमने वो इंस्ट्रूमेंट्स फाइंड करने हैं जो कि हमें फैसिलिटेट करते हैं। हमें एक पार्टी कह रही है कि सर आप ऐसा करें, इफ़ यू हैव द रिस्क इन योर माइंड, आप कॉमन स्टॉक पे चले जाएं, आप प्रेफर स्टॉक पे चले जाएं, सॉरी प्रेफर स्टॉक पे कंपनी इज़ 100% श्योर कि यू विल गेट योर रिक्वायर्ड डिविडेंड। आपका रिस्क कम हो गया, फैसिलिटेट हो रहा है। और शिफ्ट और ट्रेड रिस्क, हमारे पास जो फ्यूचर फॉरवर्ड स्वैप एग्रीमेंट्स होते हैं, क्या हैं? हम ट्रेडिंग कर रहे हैं अपने रिस्क की। वी आर नॉट विलिंग टू फेस द रिस्क इन द फ्यूचर, तो हम उनकी ट्रेडिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। हमने इंस्ट्रूमेंट्स फाइंड किए, वो इंस्ट्रूमेंट कैन बी फ्यूचर इंस्ट्रूमेंट, कैन बी अ फॉरवर्ड इंस्ट्रूमेंट, कैन बी अ स्वैप इंस्ट्रूमेंट, कोई भी सिक्योरिटी हमें हेल्प कर सकती है। तो हमने वो क्या किया, एक्सपोजर में उन्हें इंस्ट्रूमेंट्स को फाइंड किया। फाइंड इंस्ट्रूमेंट्स एंड फैसिलिटीज़, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं जो कि शिफ्ट कर देंगी और ट्रेड कर देंगी रिस्क को। ठीक हो गया। इसके साथ आपने क्या करना है, एक और चीज़ जिसके लिए आप दिमाग में बनाएंगे जब आप मेजर करने लगेंगे, असेस इफ़ेक्ट्स ऑफ एक्सपोजर। अगर आपके लिए रिस्क क्रिएट हो जाता है, वो अपना पूरे ज़ोर और ताब से क्रिएट करता है प्रॉब्लम आपके लिए, तो उस पर क्या असरात नमूदार होंगे, ठीक है, वो असेस करना है। यू हैव टू असेस द इफ़ेक्ट्स ऑफ एक्सपोजर। जब हम यहाँ पे आते हैं इंस्ट्रूमेंट्स के हवाले से, वहाँ पे हमारे पास क्या है, यू हैव टू असेस कॉस्ट। यानी आप एक चाह रहे हैं कि सर हम फ्यूचर एग्रीमेंट से, हम फॉरवर्ड एग्रीमेंट से बच सकते हैं, तो जब आप उन एग्रीमेंट्स में जाएंगे तो यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट एंड बेनिफिट्स, कंपैरिजन करेंगे ऑफ इंस्ट्रूमेंट कि सर इसकी कॉस्ट कितनी पड़ेगी और इसके बेनिफिट्स क्या होंगे। ठीक हो गया। दीज थिंग्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अब जब आप ये सारा कुछ करते हैं तो आप एक स्ट्रेटेजी क्रिएट कर लेते हैं, रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटेजी। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी लिखा हुआ है, रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटेजी। जब आप अपनी रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटेजी पे जाते हैं तो रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटेजी आपको हेल्प करती है कुछ बातों पे। मतलब वो स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजी। फर्स्ट वन इज़ टू अवॉइड द रिस्क। पहली स्ट्रेटेजी है कि वी हैव टू अवॉइड द रिस्क, हमने रिस्क लेना ही नहीं है। दूसरी क्या होती है, ट्रांसफ़र। आप अपना फ्यूचर एग्रीमेंट, फॉरवर्ड एग्रीमेंट में क्या कर रहे हैं, आप अपना रिस्क ट्रांसफ़र कर रहे हैं। फिर क्या है, मिटिगेट। मिटिगेट मीन्स वी आर रेडी टू फेस द रिस्क बट वी आर ट्राइंग टू लिमिटाइज दैट रिस्क, उससे हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं। द फोर्थ वन इज़ यू हैव टू कीप द रिस्क। अब वाई वी आर कीपिंग द रिस्क, रिस्क मोर रिटर्न, वी हैव द आइडिया अबाउट दैट। तो आपने कहा कि नहीं, हमने ना अवॉइड करना है, ना मिटिगेट करना है, ना ट्रांसफ़र करना है, वी आर रेडी टू फेस द रिस्क, तो इट मीन्स यू आर कीपिंग द रिस्क। अब जब आप ये सारी एक्टिविटी करेंगे, यू विल ट्राई टू अवॉइड अप्लाई दैम। व्हेन यू विल अप्लाई दैम, यू हैव टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस। नाउ द थिंग दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि अवॉइड करने पे क्या पे इवेल्युएट परफॉर्मेंस अलहदा होगी कि हमने अवॉइड कर सके हैं,
ट्रांसफ़र करने पे इवेल्यूएट परफॉर्मेंस अलहदा हुई, क्या हमने ट्रांसफ़र कर लिया है, मिटिगेट करने पे दोबारा होगी कि क्या हमने मिटिगेट कर लिया है, या कीप करने पे हम कहते हैं हाँ हमने किया, अब उसके बाद हमारी परफॉर्मेंस क्या रही है। तो ये तमाम चीज़ें आपने इवेल्यूएट करनी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये भी होता है कि इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि रिस्क मैनेजमेंट यही है मैनेजमेंट डजेंट मीन कि रिस्क से बच जाना ही रिस्क मैनेजमेंट है। रिस्क मैनेजमेंट कैन बी अ प्रोसेस टू इवेल्युएट द लेवल of variability. Now that is very much important for you to understand. Level of variability, वेरिएशन कितनी आ सकती है। 10% था, मैंने अभी जो पहले एग्जांपल 8% हुआ, डिफरेंस 2%, सर 3 भी हो सकती है, सर इट कैन बी 4%, so it means there is a variation, there is a gap, there is a different end results, fine. सो यू हैव टू फाइंड दैट वेरिएशन कि अगर हम 10% 8% एक्सपेक्टेशन के साथ जा रहे हैं तो वेरिएशन 2 भी आ सकती है। सर इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि 8% 7% भी हो सकती है, सर 6% भी हो सकता है, रिक्वायर्ड 8 है, रिक्वायर्ड की विल नॉट चेंज। आप अच्छा, रिक्वायर्ड कैन बी चेंज ऑन द बेसिस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स, आप इंस्ट्रूमेंट चेंज करके फिर आपकी रिक्वायरमेंट चेंज हो जाएगी। अब इस इंस्ट्रूमेंट पे आपको कितनी रिक्वायरमेंट चाहिए, इट डिपेंड्स ऑन यू, इट डिपेंड्स ऑन योर बिलीव्स, इट डिपेंड्स ऑन योर एक्सपेक्टेशन, ठीक है। तो आपकी रिक्वायरमेंट चेंज होगी और एंड रिज़ल्ट ही डिफरेंट होगा नहीं होगा, ये चीज़ें आपके लिए क्या करेंगी, दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ योर रिस्क मैनेजमेंट। देन वी हैव द topic that is another topic. We have completed the risk management process till this point. The conflict of risk and reward. Now that is basically a contrasting topic. We have the idea that sir, if you will increase your risk, the reward will increase, the return will increase, but it is not compulsory. You were saying sir, I am expecting 10%, I am taking to face the risk and the return should be 10%. It can be 11%, more than your expectation, can be 13%, more than your expectation, can be 4%. It means reward, it is not always be like that if you will increase the level of risk, the return will increase. No, return can decrease as well. So we have the idea in our mind, sir, more risk more return, more risk more return, but it cannot be applied in every situation, it cannot be applied for every instrument. Your risk can create loss for you. So we were expecting the reward, तो यहाँ पे तो लॉस हो गया, तो it is not the requirement, it is basically a general phenomena कि सर आप रिस्क ज़्यादा लेंगे आपका रिटर्न बढ़ेगा, लेकिन वहाँ पे लॉस के चांसेस भी बढ़ जा सकते हैं, ठीक हो गया। So that is simplest topic, that there is a contrasting or conflicting theories regarding the risk and reward, ठीक है। इसके बाद एक और टॉपिक है हमारा these topics जो can be the part of your paper, fine। तो हर टॉपिक को समझो, उसकी मेन थ्योरी को समझो। अब अगर फॉर एग्जांपल पेपर आपको ऑब्जेक्टिव आएगा तो यही जो चीज़ें मैंने बताई हैं इन्हीं को मैं थ्योरेटिकल फॉर्म ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा। एट दैट टाइम इफ़ यू विल हैव द आइडिया अबाउट द थीम ऑफ द टॉपिक, तो यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ बातें हैं कि सर व्हाट शुड बी द एक्चुअल रिस्क। तो हम कुछ जो है ना यहाँ पे टॉपिक जो है ना, द नेम ऑफ द टॉपिक इज द डेंजर्स ऑफ नेम। सर हमने एक चीज़ को समझा, जैसे वी डिस्कस्ड अबाउट द फाइनेंशियल क्राइसिस। अब उससे कोई आपसे जाके पूछ ले कि सर इस फाइनेंशियल क्राइसिस को क्या नाम देंगे, वो एक बंदा कहता है कि सर इट शुड बी नेम्ड एज अ क्रेडिट रिस्क, कि हमारे पास क्रेडिट हमने ज़्यादा दे दिया उससे प्रॉब्लम हो गई। कहते हैं दूसरा कहता है नहीं सर क्रेडिट रिस्क नहीं है, लिक्विडिटी रिस्क है, वी वर अनएबल टू पे द
लोन हमने जो बात की थी, अगर किसी को याद हो, वैसे तो सबको याद होना चाहिए, टॉपिक हमने बड़ा अच्छी डिटेल से डिस्कशन की थी उसके ऊपर, वो इसे लिक्विडिटी रिस्क कहता है। फिर वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये रिस्क, ये मार्केट रिस्क है, पूरी मार्केट ही कोलैप्स कर गई। तो इट मीन्स अ सेम एक्टिविटी कैन गिव यू डिफरेंट नेम्स, अ डेंजर ऑफ नेम। आप किसी चीज़ को कुछ समझ रहे हो लेकिन वो होता कुछ और है। तो अब यहाँ पे उन्होंने कहा कंट्रोलेबल एंड मैनेजेबल रिस्क के नाम से उन्होंने कुछ कहा है कि आप कंट्रोलेबल एक चीज़ को समझ रहे हो एंड मैनेजेबल रिस्क। हमने अब ये जब लिखते हैं इसके अंदर कुछ और नाम आते हैं। कंट्रोलेबल का नाम क्या हो गया? कंट्रोलेबल रिस्क, रिस्क कैन बी कंट्रोल। अब कौन सी एक्टिविटी, स्ट्रेटजी क्या? हमने चारों स्ट्रेटजीज डिस्कस कर ली हैं, अवॉइड, मिटिगेट, ट्रांसफ़र एंड कीप। फाइन। कंट्रोलेबल एंड मैनेजेबल रिस्क, ये बात एक ही हो रही है, ठीक हो गया। इसमें हमने दो बातें पढ़नी है। कंट्रोल जब करने लगेंगे तो पहली तो चीज़ हमने जिस रिस्क को कंट्रोल और या मैनेज कर सकते हैं वो है मार्केट का। A risk that can be a risk due to the market factors and risk like interest rate, foreign exchange risk और इक्विटी और कमोडिटी प्राइस फैक्टर्स। अब इसमें जो जो नाम मैंने बोले हैं ये तमाम मार्केट से रिलेट करते हैं, ठीक है। मार्केट का इंटरेस्ट रेट चेंज हो गया अभी ड्यू टू कोरोना वायरस, यू हैव द आइडिया कि हमारा इंटरेस्ट रेट गिरता ही जा रहा है, ठीक है। तो कुछ लोग इसे पॉजिटिव ले रहे हैं, कुछ लोग इसे नेगेटिव ले रहे हैं। तो इंटरेस्ट रेट मार्केट का रिस्क है। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, आई वॉज ब्राउजिंग सर्टन वेबसाइट, उसमें उन्होंने कहा कि कोई भी चाइना तो नहीं जा रहा था, तो फॉरेन एक्सचेंज जो उनके रेट से उसमें बड़ा फ्लक्चुएशन आई। जो एक चीज़ 100 रुपये की थी वो 50 रुपये की भी लेने को कोई तैयार नहीं था। फॉरेन एक्सचेंज, ये मार्केट का रिस्क है। कमोडिटी प्राइस, जो चीज़ कल को 10 रुपये की मिल रही थी, जैसे कि ग्लव्स, वो आज 100 रुपये के मिल रहे हैं। कमोडिटी प्राइस फैक्टर्स, ये भी मार्केट का रिस्क है। जो चीज़ भी मार्केट सिचुएशन की वजह से आती है वो मार्केट का रिस्क है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और फिनोमेना है इसी के अंदर, क्रेडिट रिस्क। अभी यही चीज़ें दोबारा भी आएंगी। मैं अभी टाइप्स ऑफ रिस्क का एक और टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसमें ये सारी चीज़ें दोबारा आ जाएंगी। अभी इस वक्त हम एक टॉपिक है जिसके मैं आपको ये फाइल भी शेयर कर दूंगा, द डेंजर्स ऑफ नेम के नाम से। इसके अंदर 3 रिस्क के बारे में जिक्र किया, एक मार्केट रिस्क, एक क्रेडिट रिस्क और तीसरी बात ऑपरेशनल रिस्क। अच्छा, अब द क्रेडिट रिस्क क्या है? द रिस्क ऑफ लॉस। क्या है? द रिस्क ऑफ लॉस फॉलोइंग अ चेंज इन द फैक्टर दैट ड्राइव द क्रेडिट क्वालिटी ऑफ एन एसेट। क्या मतलब? वो तमाम फैक्टर जिसकी वजह से क्रेडिट क्वालिटी एक एसेट की चेंज हो सकती है। क्रेडिट क्वालिटी ऑफ एन एसेट चेंजेस, ये हमारा क्रेडिट रिस्क में आ रहा है। अब यहाँ पे एग्जांपल हम कौन सी दे सकते हैं? द सेम फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2007। उसमें हम क्या था कि सेम हाउस था, डेट वॉज इक्वलेंट टू 35 लाख, कल को उसका रेट क्या हुआ? 20 लाख पे आ गया। तो वो 15 लाख किसी ने कहा यार मैं क्यों 15 लाख रुपए ज़्यादा भरूँ। यानी क्रेडिट क्वालिटी ऑफ एसेट्स के फ़र्क आ रहा है, एसेट की प्राइस के ऊपर फ़र्क आ रहा है, जिससे जो क्रेडिट क्वालिटी है उस पर इफेक्ट आया था, ठीक है। अब ये क्यों होता है? इसमें जो फैक्टर है डेट इज़ योर डिफ़ॉल्ट एंड डायनेमिक रेट्स। डायनेमिक डिफ़ॉल्ट तो आपको पता है कि द पर्सन वॉज नॉट एनेबल टू पे द अमाउंट ऑफ लोन, उसने वो डिफ़ॉल्ट करने लग गया, तो डिफ़ॉल्ट फैक्टर आ रहा है। और डायनेमिक रेट्स क्या हैं? जैसे हमने फ्लोटेशन रेट्स पढ़े थे कि एट द टाइम ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस उन्होंने कहा कि सर 1% यू वर सपोज टू गिव, वी वर सपोज टू गिव यू 1% इंटरेस्ट, आज आप हमें कह रहे हैं 5% इंटरेस्ट, कल आप हमें कह रहे हैं 10% इंटरेस्ट। तो क्या हो रहा है? सो योर इंटरेस्ट रेट इज़ इंक्रीजिंग, फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट, डायनेमिक रेट्स, आपके रेट्स डिफरेंट आ रहे हैं, जिसकी वजह से दे स्टार्टेड टू डिफ़ॉल्ट। तो ये क्रेडिट रिस्क आ रहे हैं तमाम चीज़ें, ठीक है। डेट फैक्टर्स कैन क्रिएट द प्रॉब्लम फॉर यू, फाइन। अच्छा, इसके अलावा जो हमारा तीसरी बात है, दैट इज़ योर ऑपरेशनल रिस्क। योर ऑपरेशनल एक्टिविटी विल बी कॉम्प्रोमाइज, योर ऑपरेशनल एक्टिविटी विल नॉट बी अकॉर्डिंग टू द प्लान, दैट इज़ योर ऑपरेशनल रिस्क। अब इसमें ऑपरेशनल रिस्क में क्या क्या फैक्टर्स, क्या कौन सी चीज़ें आपके लिए क्रिएट कर सकती हैं? पहला फैक्टर उन्होंने यहाँ पे फ्रॉड की बात है। इनएडिक्वेट कंप्यूटर सिस्टम, आपका जो कंप्यूटर सिस्टम था
जिसमें आपने सारा अपनी फाइनेंशियल डीलिंग कर रहे थे, वो कंप्यूटर सिस्टम किसी ने हैक कर लिया. ऑल द स्टफ, ऑल द डेटा आर मिसयूज्ड, all the data is misused. So that is your inadequate computer system. तो हमारे पास अच्छी एग्जांपल इससे कौन सी आ रही है, LMS की आ रही है जो BZU का चल रहा है. प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वी आर अनेबल टू यूज़ दैट सिस्टम. तो ये क्या होता है, आपने एक चीज़ जिसके ऊपर आपने सारा सिस्टम को क्रिएट किया, अगर वही इनएडिक्वेट हो जाए, फेलियर इन कंट्रोल, आपने जो कंट्रोल उस पर रखा दैट वाज अनेबल दैट टू सेटिस्फाई यू, अनसफिशेंट हुआ. और एनी मिस्टेक, अब मिस्टेक कैन बी ऑफ ऑपरेशनल रिस्क. इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि आप हमेशा फ्रॉड ही करेंगे, कभी कभार गलती भी हो जाती है. ठीक हो गया. अब ये तमाम चीज़, ये आपकी जो थी ना, ये डेंजर्स ऑफ नेम में हमने 3 चीज़ें पढ़ी कि हम इन 3 चीज़ों को डिफरेंट नामों से जानते हैं. ऑपरेशनल, अब किसी ने फ्रॉड कर ले, इसे ये आपके ऑपरेशनल फॉल्ट है. फेलियर आ गया कंट्रोल में, ये ऑपरेशनल फॉल्ट है. यहाँ पे क्रेडिट का मसला नहीं आया, यहाँ पे आपकी डिफ़ॉल्ट का मसला नहीं आया, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट का मसला नहीं आया. ये तमाम नाम जो आप पढ़ रहे हैं, ये तमाम के तमाम आपके लिए मार्केट रिस्क क्रिएट करते हैं. ठीक हो क्या. अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ योर कॉन्सेप्ट ऑफ EWRM, Enterprise Wide Risk Management. Fine. Enterprise Wide Risk Management, ये that can be the part of your MCQs. मैं आपसे एब्रीवेशन पूछ लूँ, EWRM किसका एब्रीवेशन है. ठीक है. Wide risk management. Enterprise means the company. Wide risk management means they are not considering a single factor of risk. यहाँ पे वो 1000 फैक्टर्स को सोच रहे हैं, वो 200 फैक्टर्स को सोच रहे हैं कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है. ऑपरेशनल, मार्केट, क्रेडिट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वट एवर द थिंग दे आर कंसिडरिंग एज अ थ्रेट, वो उनके लिए रिस्क है. तो वो किस तरह उन्हें मैनेज करते हैं एंटरप्राइज वाइड. अब इसमें सिर्फ और ने इसका आइडिया लेना है कि एज एन ऑर्गेनाइजेशन कंप्लाइंस, इसमें कंप्लाइंस का वर्ड आप ध्यान में रखें. कंप्लाइंस का मतलब है कि वी हैव टू कंप्लाई विद ऑल द पॉसिबल रिस्क, और वो रिस्क कोई भी चीज़ हो सकती है. अभी मैं आपको एग्जांपल में टाइप्स ऑफ रिस्क पढ़ाऊँगा, इसमें 50,000 रिस्क हैं. तो आपने क्या करना है, एक ऑर्गेनाइजेशन को उन तमाम के साथ कंप्लाई करके देखना है कि अगर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो हम उन्हें कैसे, क्या करना पड़ेगा, ये हम उसे कैसे, क्या स्ट्रेटजी बनाएंगे. तो कंप्लाइंस रिस्क फैक्टर को हम एज एन एंटरप्राइज वाइड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं. उसके बाद हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है VAR, वैल्यू एट रिस्क. अब इसमें बहुत सारी एम्बिग्यूटी है, इसकी अगर डिटेल्स में जाएंगे तो ये बहुत वास्ट टॉपिक है, इसके ऊपर पूरी पूरी बुक्स मिल जाएंगी आपको. लेकिन इन सिंपलेस्ट फॉर्म हम ये कहते हैं कि एक इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, एज अ सिक्योरिटी लेते हैं, दैट इज़ एक्सपेक्टेड टू गिव यू 10% रिटर्न. ठीक है. लेकिन अगर रिस्क का फैक्टर आ जाता है, अगर आपके लिए कोई चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट कर लेती है, आपके लिए कोई चीज़ रिस्क क्रिएट कर रही है, उस वक्त इसी सेम सिक्योरिटी की वैल्यू क्या होगी, डेट इज़ योर वैल्यू एट रिस्क. ठीक है. देन वी हैव अनदर टॉपिक, द की मैनेजर्स जॉब. In simplest form, we may say that the key manager's job is to manage potential risk. उसने उसे मैनेज करना है, चाहे वो स्ट्रेटजी बनाए, चाहे वो कोई उसी स्ट्रेटजीज़ के ऊपर आ जाए. उनमें हम फिर चारों बातें दोबारा पढ़ लेंगे कि चाहे वो उसे क्या करे, अवॉइड करे, मिटिगेट करे, कीप करे, ट्रांसफ़र करे. तो दीज कैन बी द जॉब ऑफ योर फाइनेंशियल मैनेजर. हम यहाँ पे कोई सी और मैनेजर की बात नहीं करेंगे, हमें एज अ फाइनेंशियल मैनेजर के हम एक फाइनेंशियल मैनेजर को लेके चलेंगे कि उसने क्या करना है, इन चीज़ों को, उसकी जॉब क्या है, कि ही इज़ सपोज टू मैनेज द रिस्क. फाइन. सो
अभी कुछ और टॉपिक्स हैं, मैं इसका पार्ट 2 जब बनाऊंगा आप लोगों के लिए तो उसमें वो टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए जो 4 5 6 टॉपिक्स हमने पढ़े हैं इन्हें ज़रा दोबारा वीडियो, अच्छा जिस चीज़ की आपको समझ ना आए उस पर वीडियो पीछे करके दोबारा देखें। दैट इज़ बेसिकली द मेन बेनिफिट ऑफ योर यूट्यूब वीडियो। अगर मैं ऑनलाइन क्लास या किसी से बात करूं, यहाँ पे हम जूम ऐप के ऊपर फॉर एग्जांपल, वहाँ पे तो जो मैंने बात कर ली, कोई बच्चा अटेंटिव था नहीं था, वो सो रहा था, उसका ध्यान नहीं था, उसके नेट नहीं आ रहा था, हज़ार मसले। यूट्यूब तो हर एक के पास है, जब टाइम मिले आप उसे बार बार वीडियो दोबारा देख के अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके बच्चे, अल्लाह हाफ़िज़।